Good morning, students, and welcome. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 1.1 Past, Present, Future. This is the first lesson of this academic year 2021 and 22. Okay, let's start with the unit 1. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. Okay. This is the poem about past, present and future. You know it very well what is past, present and future. Past is means the things which has happened earlier. मतलब जो बीत चुका है, that is your past. We say it in Hindi भूतकाल. Present is that our present, what it is running right now. क्या चल रहा है अभी, that is the present. And future is to be, you don't know what the future is. फ्यूचर अपना भविष्य कैसा है ये हमें पता नहीं, तो आने वाला कल को हम फ्यूचर कहते. सो इन दिस पोएम एमिली ब्रॉन्टी इज जस्ट आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज द पास्ट टू अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड. उस बच्चे को पूछ रहे कि आपके हिसाब से पास्ट आपके लिए क्या है. तो शी इज आस्किंग द फर्स्ट आंसर, सी tell me smiling child, what is the past is like to thee. He means you, तुम्हारे. It is the old language, old English. Okay, according to the new English, अभी का जो present English है, it means you. Tell me smiling child, what is the past is like to thee, means you. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. What the child is replying when the poet asks about the child that what is the past according to that child. So what the child is explaining, an autumn evening soft and mild means it's a evening which had some bad experience, bad things happened, something, and even something good also. It means it was an average according to the child. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Mournfully means sadly. Okay, with the wind that sighs mournfully, मतलब according to the child वो क्या, जो बीता हुआ कल जो है वो इतना अच्छा नहीं, it was not so good. He experienced some bad things also and even good things, और इतना अच्छा यादगार नहीं है उनका जो पास्ट है उस बच्चे का. सो इट इज सेइंग एक सॉफ्ट माइल्ड की तरह था. सॉफ्ट इवनिंग, ऑटम इवनिंग मीन्स जहाँ पे देखिए यू मस्ट सीन द लीव्स फेल थ्रोन फ्रॉम द ट्रीज. मतलब एक ट्री में एक सीज़न ऐसा होता है जहाँ पे झड़ते, मतलब पत्ते वगैरह झड़ने शुरू होते. एंड आफ्टर दैट न्यू लीव्स अगेन कम्स. ओके, तो उसके बच्चे के लिए क्या है, एक ऑटम इवनिंग की तरह है. मतलब वो इतना अच्छा नहीं रहा है, उसमें ऐसा कुछ ऐसा यादगार अच्छे पल नहीं थे, एकदम एवरेज था, जिसमें खुशी के पल भी थे, गम के पल थे, और इतना खुशनुमा नहीं था. ओके, now again the poet is asking, tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where the young bird sits gathering its power to mount and fly away. Now in the second stanza the poet is asking what is the present according to that child. Now what it is saying, what is the child is explaining. Now my present hour is like a green and flowery spray, means आँखों में बहुत सारे सपने हैं. ओके, आप अभी क्या है, एक आशा करते, एक आशा लेके चलते कि एवरीथिंग विल बी नाइस, गुड, एवरीथिंग. तो आपका प्रेजेंट क्या है, व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग, इट इज़ लाइक अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. मतलब हर जगह पे हरियाली हरियाली, एवरीथिंग इज गुड. सो इट इज एक्सप्लेन्ड एज फ्लावरी स्प्रे. आपको ये सब बगीचा वगैरह देखे तो कितना खुशी लगती है. इट्स समथिंग वेरी ग्रीनरी एंड आपको मोटिवेट करता है दैट एवरीथिंग विल बी गुड. तो वैसे एक बच्चे के लिए क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टिंग, इज टेलिंग दैट माई प्रेजेंट इज़ लाइक अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, मीन्स इट्स लॉट्स ऑफ ड्रीम्स एंड ऑल. लाइफ में काफ़ी कुछ करने की चाहत है, ये सब उसकी एक्सपीरियंस है. Where a young bird sits gathering its power to mount and fly away.
where what happens, the young bird is trying to gather its power. The little young bird, what it does is try to fly, but it is not able to do so because their wings are not so strong. So it is saying that little bird is gathering his power, मतलब अपनी सारी ताकतें आजमा रहा है, एक अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है ताकि वो बड़ी सी बड़ी उड़ान भर सके. तो इट इज़ गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे. वैसे ही बच्चे की आशा है कि वो उसका जो प्रेजेंट में वो क्या सोचते हैं, वो बहुत सी ये चीज़ें करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा, अच्छी अच्छी सपने उसके आंखों में है कि भविष्य में उन सब चीज़ों को वो अच्छा करेगा और अपनी सारी ताकतें लगा रहा है कि उसका अपना आने वाला जो कल है वो अच्छा हो. तो दैट इज़ अ प्रेजेंट इज ट्राइंग टू डू इट वेल. ये करके रखता है कि उसको लाइफ में फ्यूचर में कोई भी मुसीबतें या तकलीफ़ें ना है. In the third stanza, and what is the future happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. Now the poet is asking the child, what is the future according to you? What are you planning in your future? What do you think what your future will be? आपका future कैसा होगा? तो what the child is saying, a sea beneath the cloudless sun. और द सी बेनीथ द क्लाउडलेस सन मीन्स अगर आप एक समुद्र के एक हो बेटे हैं तो आपको समुद्र का उसका अंत कहाँ है नज़र नहीं रहा. यू डोंट फाइंड द एंड ऑफ दैट सी मीन्स. सो द चाइल्ड इज सेइंग दैट आई फाइंड माई फ्यूचर इट इज़ वेरी ब्राइट. जिसका कहाँ पे क्या ये है मुझे पता नहीं. माई फ्यूचर विल बी वेरी गुड. मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मेरी बहुत सारी आशाएँ हैं. मैं काफ़ी सारी कामयाबी हासिल करूँगा. तो इसकी कोई अंत नहीं है. ओके, इट इज़ लाइक अ सी बेनीथ अ क्लाउडलेस सन. एक समुंदर की तरह है जिसका अंत कहाँ पे मुझे पता नहीं है. अ माइटी ग्लोरियस डैज़लिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी. एक सी की तरह जो विशाल है. मेरा फ्यूचर भी एक ऐसा बड़ा विशाल जिसमें बहुत सारे कामयाबी मुझे मिलेगी, हासिल होगा. मैं बहुत सक्सेसफुल रहूँगा. एंड देयर इज़ नो हैंड टू माई हैप्पीनेस एंड ऑल. वैसे वो अपने भविष्य के बारे में आशा लगा कि उसकी भविष्य ऐसा होगा. दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन्ड इन दिस पोएम. ओके, दिस इज अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, लेट्स रीड अगेन. टेल मी स्माइलिंग child, what is the past is like to thee? An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Mournfully means sadly. Okay, and thee means you. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. To mount मतलब उठना, उठ के खड़ा होना. बर्ड्स क्या करते हैं, जब उठने की कोशिश करते तो बार बार गिर जाते, फिर से वो ताकत लगाते, फिर से उठने. तो माउंट मतलब तो उठना, उभरना उस गलती से. ज़िंदगी में भी ऐसे ही होते. कभी हम लोग हार मानते हैं तो हम लोग बैठे नहीं रहना चाहिए, उसमें से उभरने की कोशिश करना चाहिए ताकि और बड़ी उड़ान नहीं कर सके और अच्छी कोशिश कर सके ताकि अपनी लाइफ फ्यूचर इट विल बी अ सक्सेसफुल. सो इट इज सेड एज ओके टू माउंट एंड फ्लाई अवे. And what is the future happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. फ्यूचर कैसा होगा अगर हम अभी मेहनत कर रहे, काफ़ी मेहनत कर रहे ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे प्रेजेंट में. तो उससे क्या होगा, फ्यूचर अपना ब्राइट होगा. कभी भी हमें नाकामी भी कि ये देखना नहीं पड़ेगा. वी वोंट फेस ऑल दिस थिंग्स. हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होगी इफ़ यू ट्राई इट इन द प्रेजेंट. अभी अगर हम लोग पहले हमसे कुछ गलती हुई है, उस गलती को आप पहचान रहे कि आपसे गलती हुई है, अगर उसको अभी उस गलती को सुधार रहे हो और अच्छी कोशिश कर रहे हो कि ज़िंदगी में आगे चल के सफलता मिले, कोशिश चल रही है, तो नेचुरली आपको सफलता मिलेगी. बट यू हैव टू ट्राई इट इन द प्रेजेंट. फ्यूचर पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. उसी के बारे में सोचते रहना नहीं है, बल्कि उस गलतियों को पीछे छोड़ के आगे हमें वो गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स डन इन द पास्ट, बट कंटिन्यू योर लाइफ विथ अ गुड ड्रीम, अ सक्सेस, एंड ट्राई टू फुलफिल योर ड्रीम. की लाइफ में आप कुछ अच्छा करना चाहते.
This is what it is mentioned in the poem. It is also a motivational poem for you all कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है स्टडी से रिलेटेड या आपसे कोई ऐसे पर्सनल ऐसा कोई भी बात हुई है जिससे आपको दुख हुआ है, तो उसको लेके मत बैठिए। भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसके लिए प्रेजेंट में कोशिश कीजिए कि उन गलतियों को आप भूल जाए, या जो भी घटना घटी है उसको दुख भरा हो, तकलीफ भरा हो, उसे भूल जाए, उससे उभरने की कोशिश कीजिए ताकि आपका आने वाला कल अच्छा हो। दिस शुड बी द इंटेंशन ऑफ योर लाइफ and that is only that will lead to a successful life. Okay, that is all in this poem. Infinity means which has no end or limit. मतलब अगर आप अच्छे कर रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो लाइफ में, अभी कुछ कोशिश अच्छे कर रहे हो, तो वो सब तो आपका लाइफ जो आगे आने वाला है उसमें बहुत खुशियाँ होगी जिसका कोई अंत नहीं होगा. You will be quite happy and good, happy and successful life. Okay, infinity means having no end. Okay, that's all in this poem. Thank you.